anyways. And I can just tell you one thing. There is a very famous saying, and it is the core of my belief. शमशीर के साए के तले जन्नत पलती है. Paradise is under the shade of swords. If you love your country, you must be willing to defend this country with violence. हम लोग यहाँ पे अच्छा बात लोग बड़ी इंटरेस्टिंग करते हैं. अगर आपने पाकिस्तान पे अटैक करा तो आपको पता है उनके पास न्यूक्लियर वेपन है. एक बात बताइए, जब 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल में हमें अटैक करा था, क्या हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे? थे ना हमारे पास. देन दिस फियर ऑफ द अननोन इन आवर माइंड्स, अपन से हमें पाला ऐसे गया. You have to put context. See, finally, I would like to say one thing. Please speak to the person in the language he understands. You can do diplomacy with any other country in the world. If you try diplomacy with Pakistan, you will fail because you will keep on engaging with इमरान खान और उसके बेचारे के हाथ में है नहीं कुछ. What did Pakistan do? आपको पता है, ये 16 दिसंबर का वाकया पाकिस्तान में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर जब बच्चों को मारा गया था टेररिस्ट अटैक में. इट वॉज सो अनफॉर्चुनेट. 132-133 बच्चों को मार दिया टेररिस्ट ने. पाकिस्तान ने क्या करा? Within 24 hours, F-16 aircraft took off and they started bombing villages in North Waziristan. They started killing their own civilians. एक तो ये काम कर दिया पाकिस्तान ने. दूसरी चीज, जो पाकिस्तान ने शुरू करा था उससे आज भी हिंदुस्तान भुगत रहा है. I'll come back to surgical strikes. Just one point. How many of you know that what was the final straw on the camel's back which led to the 1971 war? यहां पे मेरे काफी सीनियर्स बैठे हैं. The final straw on the camel's back was the millions of Bengali refugees who were coming into India. There were other reasons also. But one of the stated reasons, now, war कभी एक कारण से नहीं होता. There are 10 reasons. One of the stated reasons was a massive refugee influx into India. And there are Pakistani supporting parties, especially Jamaatul Islami in Bangladesh, who still encourage this. They encourage this, and every day hundreds of people stream into India, hundreds literally. And the day is not far when in some corner of Uttar Pradesh or Karnataka or Rajasthan or any other state, you will have the first member of parliament or the first MLA who's a Rohingya. आपने इनको आधार कार्ड जो दे दिया, आपने पैन कार्ड दे दिया. If you go to the Sojian camp where the attack took place in J&K, just outside across the road, there is a huge thriving Rohingya colony. Just outside the army. So we are sitting on a time bomb. Relations with Pakistan have to be looked through a certain prism. As long as Imran Khan keeps on saying that he keeps on parroting the army line, he will be in power. The day he stops parroting the army line, Imran Khan will be either shot dead, he'll be hanged, he'll be exiled. Because there is an example of 3-4, it has happened to 3-4 people. So Imran is nothing special. They'll do it to Imran also. How do you engage with Pakistan? And this is not just post-surgical strikes. This is also always, I have maintained, at least after 1965. The problem is not Hafiz Saeed. The problem is not Maulana Masood Azhar. The problem is not Sayyid Salahuddin. ये सिर्फ मुखौटे हैं. कल अगर आप हाफिज सईद को मार देंगे तो कोई और हाफिज सईद आ जाएगा. और उनके पास 35,000 रजिस्टर्ड मदरसाज हैं और लाखों अनरजिस्टर्ड मदरसाज हैं. अगर एक मदरसे से एक लड़का भी तैयार हो गया लड़ने के लिए, they can keep on fighting India for the next 100 years.
और हम लोग इसी चीज में खुश रहेंगे कि आज हमने 3 मार दिए, कल 5 मार दिए. They have an unlimited supply. So what is the solution? So you're living in a room, let's say. There is one room और आपके बगल में कमरे में एक और कमरा है, राइट? और उस कमरे में पानी का नल किसी ने खोल रखा है, तो पानी बह के आपके कमरे में आ रहा है, तो आपने वाइपर लिया, आपने पोछा लिया, आपने कमरा साफ कर दिया, आपका कमरा साफ हो गया. लेकिन 5 सेकंड बाद दोबारा पानी आ गया. अगर आप ये चाहते हैं कि पानी आपके कमरे में आना बंद हो, तो आपको उस कमरे में जाके नल बंद करना पड़ेगा, ठीक है? और बाकी हम अगले 100 साल तक आपस में झूठ बोल सकते हैं एक दूसरे को. We can keep lying to ourselves. But I am of the very firm belief that unless you break the spine of the Pakistan army, nothing will change. This is the monster that we have ignored for the past 70 years. हम इमरान से बात नहीं करेंगे. वो मत करो यार इमरान से बात. ना इमरान को फर्क पड़ना है, ना आपको फर्क पड़ना, कुछ नहीं होना उससे. हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे. अच्छा, एक तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती. अनफॉर्चुनेटली सारा ठेका देशभक्ति का भारतीय सेना ने ले रखा है इस देश में. वो बॉलीवुड वाला अपने गाने भी रिकॉर्ड करवाता है दुबई में जाके, राइट? क्रिकेट वाले क्रिकेट भी खेल रहे हैं, हम खुशियां भी बनाते हैं जी उनको हरा दिया मैच में. देयर जॉब इज नॉट, दे आर नॉट हैप्पी विनिंग विथ यू. They are just proving to the world that we also exist and we are in engagement with India. Cricket is one of the factors. You're doing business with them. You're doing everything with them. And it is only the dead bodies of my brothers who come back in a coffin wrapped in the tricolor. जो फौजी बॉर्डर पे खड़ा है उसकी पर्सनल लड़ाई थोड़ा ना उसके. He does not even know whom he's killing. He has no idea. And this country belongs to everybody. It does not only belong to the Indian Army. It belongs to all of you. It belongs to me. It belongs to everybody here. This mass boycott of Pakistan at a civilian level and at the military level, diplomatic level, isolation, economic level, sanctions, and at the military level, to break the spine. I'm not talking about war here. I would like to think I'm a responsible person. मैं ये नहीं कह रहा जी आप अटैक कर दो, आप बम मार दो, ये सब नहीं कह रहा मैं. There are so many ways by which you can break the spine of the Pakistan army. So many ways. And I can just tell you one thing. There is a very famous saying, and it is the core of my belief. शमशीर के साए के तले जन्नत पलती है. Paradise is under the shade of swords. If you love your country, you must be willing to defend this country with violence. It cannot be defended with peace. You tell the young kids today that there are chapters upon chapters upon chapters of heroes of the freedom struggle who advocated peace. Chapters upon chapters. Nobody will tell you about a poem called Zafarnama written by Guru Gobind Singh Ji Maharaj. क्योंकि इनको फर्क ही नहीं पड़ता. इनको फर्क ही नहीं पड़ता. Nobody will tell you about Chhatrapati Shivaji. इनको फर्क नहीं पड़ता. They don't care about our icons. क्योंकि हमें दुनिया को एक इमेज प्रोजेक्ट करनी है. आपने आज अगर मेरे गाल पे थप्पड़ मारा, यू आर मोर देन वेलकम सर. आप दोबारा एक मारें प्लीज. Till you're happy. Keep slapping me, I'll keep on taking it. And we have been taking it. We have been taking it. 1947-48, they took away 1/3 of Kashmir, we did nothing about it. 1965, they attacked, we did nothing about it. 1999 in Kargil, we did nothing about it. 1993, terrorist violence in Mumbai. Stock market, Air India building, they were bombed. We did nothing about it. 26/11, we did nothing about it. Kashmir, we did nothing. Punjab, we did nothing. We have become the nothing state. पाकिस्तान को पता. हम लोग यहां पे अच्छा बात लोग बड़ी इंटरेस्टिंग करते हैं.
अगर आपने पाकिस्तान पे अटैक करा तो उनका, आपको पता है उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। एक बात बताइए, जब 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल में हमें अटैक करा था, क्या हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे? थे ना हमारे पास। देन दिस फियर ऑफ द अननोन इन आवर माइंड्स, बचपन से हमें पाला ऐसे गया है, बेटा स्वेटर पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। मां बोल रही है अपने बेटे को। तो मैं कहता हूं अगर इतना नालायक बेटा है जिसको अकल नहीं है स्वेटर पहनने की, उसको ठंड लगनी चाहिए। क्यों बच्चे को ऐसे पाल के रखा है? बेटा रोड ध्यान से देख के, वो क्या रोड क्यों नहीं ध्यान से देख के पार करेगा? आपने उसको ऐसे बना रखा है कि ये पूरी डरपोक कौम बन गई है पूरी। वी हैव बिकम सो स्केयर्ड ऑफ एवरीथिंग, जीरो एरर, गलती ना हो जाए कहीं पे। एंड दिस इज व्हाट पाकिस्तान नोज, दिस इज व्हाट पाकिस्तान टेक्स एडवांटेज ऑफ, एंड ऑफ कोर्स इट इज सपोर्टेड बाय चाइना इन अ वेरी लार्ज मेजर। अगर आपको ये सब चीजें खत्म करनी हैं, आपको सबसे पहले इसका स्रोत समझना पड़ेगा। स्रोत इसका हाफिज सईद नहीं है, दाऊद इब्राहिम नहीं है, स्रोत इसका पाकिस्तान आर्मी है। The source of all evil in Pakistan is the Pakistani army. Unless you sort out the Pakistani army, you're going to have this problem again and again. सर्जिकल स्ट्राइक तो एक थी ना, आपने एक बार करी सर्जिकल स्ट्राइक, परसों रिपोर्ट आई वो कैंप्स दोबारा बन गए। वो कैंप्स क्या हैं? वो जो कैंप्स, मैंने फोटोज देखी हैं कैंप्स की, वो कैंप्स होते क्या हैं जिनको हम बोलते हैं ना कि बड़ा टेररिस्ट के कैंप्स थे? वो क्या शॉपिंग मॉल बना रखा है वो डीएलएफ का? वहाँ पे पेड़ के नीचे कुछ कैनवस के वो हैं, कुछ वुडन स्ट्रक्चर्स हैं, बस दैट्स ऑल। वो 24 घंटे के अंदर बंद करके डिसमेंटल हो जाते हैं। यू हैव टू पुट, सी फाइनली आई वुड लाइक टू से वन थिंग, प्लीज स्पीक टू द पर्सन इन द लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड्स। You can do diplomacy with any other country in the world. If you try diplomacy with Pakistan, you will fail because you will keep on engaging with इमरान खान और उसके बेचारे के हाथ में है नहीं कुछ। और फौज ने उसका काम पे लगा दिया कि तुझे $12 बिलियन लेकर आने, हमारा डिफॉल्ट होने वाला है। अब नाउ ही इज गोइंग एंड बेगिंग पीपल। वो IMF से कभी कहता है इससे नहीं मांगूंगा, चाइना ने मना कर दिया। वो वैसे ही उनका एयरपोर्ट है जिन्ना एयरपोर्ट, वो गिरवी है, उनके मोटरवे सारे गिरवी रखे हुए हैं उन्होंने। They have taken all the money from China. Now they are asking some money from Saudi Arabia. So that is what he will keep on doing. उसका काम, उसको एक काम पे लगा दिया कि son, you've got to get money now. You get money. Or leave all this foreign policy and all. तो उसको उस काम पे लगा दिया। फौज क्या कर रही है वहाँ पे? उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, और मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे, ये काम करते हैं लोग फुल टाइम कि 7 लाख की फौज क्या है और आपकी फौज ने ये कर दिया वो कर दिया। Indian army has shown great restraint in Kashmir because we believe those are our people. ठीक है? We have shown fantastic restraint in Kashmir. What did Pakistan do? आपको पता है? ये 16 दिसंबर का वाकया पाकिस्तान में, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, जब बच्चों को मारा गया था टेररिस्ट अटैक में। इट वॉज सो अनफॉर्चुनेट। 132-133 बच्चों को मार दिया टेररिस्ट ने। पाकिस्तान ने क्या करा? Within 24 hours, F-16 aircraft took off and they started bombing villages in North Waziristan. They started killing their own civilians out of rage. वो बंदे पड़े थे उनके जेल के अंदर जो टेररिस्ट थे जिनके ऊपर ट्रायल नहीं हुई थी। They were not even convicted. निकाल के पता नहीं 100 से ऊपर फांसी दे दी। मिलिट्री कोर्ट सेटअप करी। और पाकिस्तानी डॉन न्यूज़पेपर है, फ्रंट पेज न्यूज़, आर्मी चीफ सेंटेंसेस 13 टेररिस्ट टू डेथ। आर्मी चीफ विल सेंटेंस? ये देश है कि सर्कस है? ऐसे होता है देश में? देयर इज नो सुप्रीम कोर्ट, देयर इज नथिंग, आर्मी चीफ हियर बाय सेंटेंसेस, एंड दे हैव डन इट। बट व्हेन इट कम्स टू पनिशिंग द परपेट्रेटर्स ऑफ 26/11, तो कह रहा सर प्रूफ नहीं है हमारे पास। उन्होंने तो मना कर दिया। जियो टीवी गया था पाकिस्तान का कसाब के घर में, और जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट होते हैं, वो कैमरा लेके चला गया। वो कहते हैं ख़वातीन और हज़रात, ये है अजमल कसाब जिसने टेररिस्ट स्ट्राइक करी है, इसका घर है। वो पंजाब के किसी गांव में गए, उन्होंने दिखा भी दिया घर। वो जियो टीवी वाला बंदा गायब कर दिया SI ने, उसकी पूरी फैमिली को गायब कर दिया वहाँ से। द पाकिस्तानी डीप स्टेट, दे जस्ट कंट्रोल्ड एवरीथिंग ओवरनाइट एंड दे डिड इट। दिस इज द स्टेट दैट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन। आप एक ऐसे मुल्क के साथ विच इज in a state of severe schizophrenia, it has got a severe bipolar disorder, or
एक इनका मुखौटा है, द डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन, एंड द सेकंड इज द आर्मी. एंड द आर्मी इज द मेन पावर, वेदर इट इज इन फ्रंट और इन द बैक. एक बड़ी इंटरेस्टिंग, माई लास्ट थिंग विच आई विल मेंशन टुडे, एक फौजीज हियर, माई सीनियर्स, दे ऑब्वियसली नो, पाकिस्तान में एक ब्रिगेड है इस्लामाबाद में, 111 ब्रिगेड इज द 111 ब्रिगेड. इट्स देयर इन इस्लामाबाद. उसका काम ही टेक ओवर करना है. उसका रोल है, वन ऑफ द ऑफिशियल, बिकॉज दे हैव डन इट सो मेनी टाइम्स. उस ब्रिगेड को ये बोला है कि अच्छा तुम एक काम करोगे, तुम 2-3 कंपनीज, 1 इन्फेंट्री कंपनी वुड बी करिंग 120 ऑड पीपल, तुम 2 कंपनीज भेज देना पार्लियामेंट हाउस, 1-2 प्लाटून भेज देना पीटीवी, इधर पाकिस्तान रेडियो भेज देना, यहाँ पर मेन बिल्डिंग जस्ट टेक ओवर. उस ब्रिगेड का काम ही है. दे हैव फॉर्मलाइज्ड ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट. उनके एसओपीज बन रखे हैं उसमें. सो नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, दे हैव एसओपीज, दे हैव रिटन एसओपीज. 111 ब्रिगेड, the chief of army staff picks up the phone. He says, "Puttar, chak de." He says, "Thank you, sir." Keep on the phone, tuck, done. And all 4 coups in Pakistan's history, all 4 coups in Pakistan's history have been bloodless. Not one person has died. Which means that in the civilian population there is an acceptance of army rule. कोई तो protest करता, कोई तो कहता कि गलत कर रहे हैं आप, कुछ नहीं होता. So when we say Indo-Pak relations beyond the surgical strike, there should be 3 things. And with this, I'll close my lecture. Number 1, acknowledgement of the fact that we are dealing with a dysfunctional state. Let us stop trying to approach and engage with a state like we would do a normal state. आप पाकिस्तान से वैसे बात नहीं कर सकते जैसा आप इंग्लैंड और फ्रांस से बात कर रहे हैं. ये हमारी बेवकूफ़ी है. इट इज़ नॉट पाकिस्तान्स फॉल्ट, दिस इज आवर फॉल्ट. सेकेंडली, अ स्ट्रॉन्ग मैसेज मस्ट बी पास्ड टू द वर्ल्ड कम्युनिटी दैट इंडिया इज नॉट अ नेशन ऑफ लूजर्स. 5 लाख कश्मीरी पंडित निकाल दिया आपने कश्मीर से, कोई कुछ नहीं कर पाया, आज भी रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं. क्यों? आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, फिर आप कहते हो कि जी मुझे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टेबल पर बैठना है. आपको दरवाजे पे खड़े नहीं देगा कोई. टेबल बैठने की बात कहां से कर रहे हैं आप? हाउ इज इट पॉसिबल? यू आर नॉट एबल टू डिफेंड योर ओन पीपल. इवन टुडे कश्मीरी पंडित्स आर रॉटिंग इन दोस कैंप्स आउटसाइड जम्मू. नोबडी गोज एंड टेक्स अ लुक एट देम. वो कहते हैं मरते हैं तो मरने दो. एंड नंबर 3, please remember that the main culprit here, the 800-pound gorilla in the room, is the Pakistan army. Indo-Pak relations will be decided by one line as to how India wants to engage with the Pakistani army. The reason for the Pakistani army's existence is enmity with India. तो अगर आप सोचते हैं कि सुषमा स्वराज जी अगली बार अगर पाकिस्तान, बाय द वे भगवान करे ना जाएं कभी, पर अगर कभी जाती हैं इस्लामाबाद, शी शुड गो टू रावलपिंडी, दैट विल बी द बिगेस्ट फॉल्ट ऑफ आवर लाइव्स. एंड फाइनली आई वुड लाइक टू एंड अप एंड दिस थिंग, क्लोज my lecture with saying that Indo-Pak relations is the duty of every single Indian. It is not just the Prime Minister of the country or the External Affairs Minister of this country or the soldier who's standing on the line of control. ये हम सब की जिम्मेदारी है. पाकिस्तान इज एन एनिमी स्टेट. अब मैं आपको इसको ना लाग लपेट करके थोड़ा सा मैं मीठा बना के आपको ये दे सकता हूँ कि वी आर हैविंग ट्रबल्ड रिलेशंस विद, नो वी आर नॉट हैविंग ट्रबल्ड रिलेशंस विद पाकिस्तान. उन्होंने आपके 1000 देशवासी मार दिए, 1000 से ऊपर, हजारों देशवासी मार दिए. दे हैव अटैक्ड योर पार्लियामेंट, आफ्टर विच वी लॉन्च्ड ऑपरेशन पराक्रम. दे अटैक्ड योर पार्लियामेंट, दे अटैक्ड योर स्टॉक एक्सचेंज, दे अटैक्ड मुंबई, they carry out terror attacks inside India. Hundreds and thousands of army, paramilitary, CAPF and Jammu and Kashmir police have been martyred. जब से इंसर्जेंसी शुरू हुई है तब से 1600 तो सिर्फ JNK पुलिस के मारे गए हैं. 1600 बंदे शहीद हो गए JNK पुलिस के सिर्फ. Please take all these things in context and then in your heart and in your mind decide what is the meaning of this Indo-Pak relations beyond surgical strike. तब आपको पता चलेगा कि है क्या ये.
what is it beyond the surgical strike that we want to do with Pakistan. Thank you very much. Jai Hind.